Hello students, I'm back with the fourth lecture video. I know this video has been delayed a lot, but I was busy somewhere else. So I promise you that certainly in the upcoming days you will be getting regular updates or the upload of the videos. So today we are starting with the new topic, that is soil pH. Okay, so this lecture is all about soil pH. And most, what happens, generally 2 or 3 questions or 4 or 5 questions may be asked from this particular topic. So let us start with the basics of soil pH. This soil pH term, was first proposed by the Danish scientist, whose name was Sorensen, and it was in the year of 1909. So Sorensen जो था उसने ये सॉइल पीएच जो है प्रपोज किया. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की सॉइल पीएच की, so it is very well known fact that this pH, it is the negative logarithm of the hydrogen ion activity. So in many of the books you may find the definition is that it is the negative logarithm of hydrogen ion concentration, but the right definition is the activity, because we know that pH is minus log H ion activity or concentration. So it means हम यहाँ पर एक्टिविटी स्टडी करते हैं, एंड एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, सो एक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी. Okay, so this what happens when we dilute any solution. जब हम डाइल्यूशन करना शुरू कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो जो आपकी एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू है that reaches to 1, and which is the highest value of the activity coefficient. तो अगर ये 1 हो जाएगी, तो in that case your concentration will be synonymous to the activity. But अगर आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं, तो दिस कोफिशिएंट और एक्टिविटी कोफिशिएंट इसकी वैल्यू कम होगी. सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू टेक अंडर द कंसीडरेशन योर सॉइल एक्टिविटी. ओके, नाउ व्हाई दिस पीएच इज important if we say in practical terms. We know that आपके जो भी प्लांट्स हैं उनको वाटर चाहिए, उनके वाटर के साथ साथ उनको मिनरल न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो जो सॉइल पीएच है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉल्युबलाइजेशन एज वेल एज इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि आपको पता है कोई से न्यूट्रिएंट्स किसी रेंज पर अवेलेबल होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर अवेलेबल in the pH range which is less than 7, but except your molybdenum which is basically present in the higher range of pH. So it means this is just an example कि कैसे एक pH आपके nutrients की availability को hamper कर सकता है. So अब हम बात करते हैं पहले इसी की, कि जब आप ये देखिए कि जो आपका pH है उसकी जो वैल्यू है that ranges from 0 to 14, और ये वैल्यू आई कहां से? बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ वाटर. दैट मींस आपका जो H2O है, आपको पता है जो आपका H2O है दैट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. यू नो दैट वेरी वेल. सो होता क्या, आउट ऑफ 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एक जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप स्प्लिट करता है. एंड देन होता क्या है कि डिसोसिएशन जब होता है आपका, तो जो इसका आपका when we talk of this Kw, which is the dissociation constant of the water, this is the product of this only, H positive multiplied by OH, and its value is 10 to the power minus 14. Why? Because जब split करेगा तो आपका जो हाइड्रोजन होगा that will be 10 to the power minus 7, and this OH will also be 10 to the power minus 7. तो जो इनका प्रोडक्ट होगा that will be 10 to the power minus 14. So this is the value of Kw, and this is what dissociation this constant of the water. Now after this कौन-कौन से क्वेश्चंस इससे अभी तक बन सकते हैं? तो आप देखिए, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे मैंने आपको बताया है कि pH also decides your acidity, your neutrality and basicity, and it is very well
explained by number of teachers that अगर pH आपका if it is less than 7 तो आपकी acidic conditions होंगी. If it is equal to 7 it will be neutral, and अगर basicity होगी तो more than 7. So you got this point. But होता क्या है, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि pH 7 है. आता क्या है कि अगर एक यूनिट चेंज होएगा pH, if there is one unit change in the pH, तो 10 times या 10 folds आपकी acidity या basicity change होगी. सपोज करिए अगर आपका pH 5 है और pH 6 है, तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगी that will be changed. इट मींस पर यूनिट चेंज हो रहा है क्योंकि 5 से हम 6 जा रहे हैं, तो 10 टाइम्स चेंज होगा. अगर हम 5 से 7 पर जाएंगे तो देयर विल बी 100 times change. So you see with that if there is difference of 3 then this will be 1000 times. Okay, so like this. So this particular question is generally asked in JRF or SRF. Then moreover अगर आपको पूछा जाता है कि अगर H आयन कंसेंट्रेशन आपकी 10 to the power 6 है तो OH कैसे आएगी, आपकी OH आयन कंसेंट्रेशन क्या है. तो I have already told you that Kw is equal to H and H positive into OH. So you know that अगर ये वाली वैल्यू दी गई है and you know that this value it is 10 to the power minus 14, तो ultimately your OH you can do 10 to the power minus 14 divided by 10 to the power minus 6, so it will be around 10 to the power minus 8. Simple. Why? Because जब न्यूट्रल होगा, जब 7 पे होगा तो 10 to the power minus 7 and is equal to 10 to the power minus 7. Okay, so you got this point also. Then अब हमको अगर pH को डिटरमाइन करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही pH को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. किसी भी सॉलिडिफाई ऑब्जेक्ट का आप pH नहीं निकाल सकते. इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द pH ऑफ दिस पेन, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट until or unless it is soluble in the water or in any solvent. तो हमेशा एंड मोर ओवर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कितने नॉर्मल सॉल्यूशंस का ही pH निकल सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लेस देन 1 नॉर्मल यू कैन कैलकुलेट द pH, और रेंज मैंने आपको बताई दी है 0 to 15. देन अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे होगा आपके pH का. तो बेसिकली सॉइल pH की जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सो यू नो दैट वी हैव pH meter, very well known. So this pH meter, it is nothing but it is high impedance amplifier. It is regarded as high impedance amplifier जो कि क्या करता है, that reads the electrode potential. Okay, तो होता क्या है आपका जो pH meter होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होती हैं आपकी. One is glass electrode and the another one is reference electrode. So what happens जब आपके हाइड्रोजन आयन ठीक है इस ग्लास इलेक्ट्रोड के पास या कांटेक्ट में आएंगे, so certainly an electric voltage will be developed or potential will be developed on the glass rod, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी अपना पोटेंशियल होगा. तो इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज रेड एज ए पोटेंशियोमेट्रिकली, सो दैट इज रिगार्डेड एज pH. तो जो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी डिस्प्लेड एज ए pH. ओके, देन दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एक्चुअली वो आखिर उसको और क्या बोलते हैं, तो दैट इज आल्सो रिगार्डेड एज कैलुमल इलेक्ट्रोड. दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज आल्सो नोन एज कैलुमल इलेक्ट्रोड. नाउ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआरएफ में पर्टिकुलरली कि जो pH का स्लोप होगा वो कितना होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर जो pH स्लोप होता है, स्लोप दैट इज 59 millivolt per unit of pH at 25 degree Celsius. Always remember कि 25 degree Celsius पे जो 59 millivolt per unit of pH, this is the pH slope in terms of voltage. So this is basically asked in the SRF examination. Then moreover अगर आप सपोज करिए कि आपको कोई हाइड्रोजन की आयन की कंसेंट्रेशन दी है, न्यूमेरिकल पार्ट में आपको बता रहा हूं, सपोज 0.001 मोलर ऑफ H. सो आपसे पूछेगा कि कैन यू टेल मी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कितनी है
0.00, तो सबसे इजी फंडा है अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, तो आप देख लीजिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, हाउ मेनी, 1 2 एंड 3, तो इट मींस pH विल बी 3. अगर दिया होता 0.0001, so you see 1 2 3 4 digits are there, so simply the pH will be 4. देन कभी कभार क्या कहता है कि इसी में आपको ऐड करता है कि अगर H आयन कंसंट्रेशन इतना है तो आप POH निकालिए. तो सिंपल है, अगर आपको 3 पता चल गया तो आप उसे माइनस कर दीजिए 14 से, तो यू विल गेट 11, एंड इन केस ऑफ 4 यू विल गेट 10. सो दिस इज वेरी इजी टू डू. मोर ओवर आपकी यूनिट कभी कभार पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ pH. सो एज सच ऑलवेज रिमेंबर pH डज नॉट हैव एनी यूनिट, बट this hydrogen ion concentration it is always expressed in moles per liter. तो ये आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं या आपके हाइड्रोक्सिल आयंस हैं उनको मोल्स पर लीटर में हम क्या करते हैं, बताते हैं, एज ए यूनिट एक्सप्रेस करते हैं, बट pH की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द soil pH, and you may ask different questions to me on this particular topic. But moreover, soil pH में I'll be discussing more about soil pH, like your acidity, your basicity. But हम बिल्कुल different videos में different topics cover up करेंगे. So after this soil pH, I'll be taking the soil acidity, which itself is a very big, concern. तो उसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे. So till then, do watch all my videos, do subscribe this agri tutorial. एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ते रहिए. नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से जल्दी हाजिर होऊंगा. बाय बाय, टेक केयर.